Hello, students. Welcome back for Abhyas Sessions 2026. And this year, we will start our revision with the most important topic when it comes to numericals or problems in physics. That is chapter number 7, lenses. Without any further ado, before we start the numericals of the textbook, let us quickly revise some crucial formulae. Okay, so the first formula is nothing but the lens formula. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. What is v? It is the distance of the image from the optical center of the lens. U is the distance of the object from the optical center, and f is the focal length of the given lens. It can be convex or concave. All right, the next formula is of magnification. Magnification is defined as the ratio of the height of image, that is h2, sometimes hi, over h1 or sometimes ho. So height of the image over height of the object, which is also found to be equal to v upon u. As we said, v is nothing but the distance of the image from the lens, and u is the distance of the object from the lens. Third formula is of power. Power is given as the reciprocal, that is 1 by f. Okay, f here is the focal length of the given lens. However, ensure that it is taken always in meters. And what is the unit of power? It is diopters. Okay, the next formula is of combined power in case two or more than two lenses are joined together. In that case, the combined power is given as P is equal to P1 plus P2 in case of two lenses. Keep on adding, plus P3 in case of the third lens, and so on till Pn if there are n number of lenses. All right. Next one is 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, which is nothing but another way of writing the formula of power, because we know that p is equal to 1 by f. So the total focal length, the combined focal length अगर कहीं पे पूछा जाएगा तो 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Okay, अब इन सब के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में है वो है साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन को हम नहीं भूल सकते. तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन और सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स? ये तो फॉर्मूले हैं, पर उसके साथ साथ याद क्या रखना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? यू. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, likewise focal length and power. When you say focal length and power is positive for convex lens and negative for concave lens. I will go one step ahead. जैसे हमने बोला यहां पे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो रियल इमेज बन रही है यहां पे राइट हैंड साइड पे, मतलब वो जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, हाउ विल दैट बी ऑफ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज? इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. और अगर यही वर्चुअल इमेज बन रही है तो लेफ्ट साइड पे बनेगी, तो इन दैट केस v विल बी नेगेटिव. सो फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज v इज पॉजिटिव. फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज v is negative. Likewise, height of the image. Height of the image, real and inverted. Inverted है मतलब अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव हाइट की होगी, और वर्चुअल इरेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा. आई होप वी आर क्लियर विद द साइन कन्वेंशन. इसी के साथ पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं. लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. It says 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total power of the lens combination? Combination of the lenses, right? तो यहां पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले given data लिखेंगे. यहां पे given data में हमारे पास है power of the first lens, which is 2 diopters, power of the second lens, which is 2.5 diopters, and power of the third lens, which is 1.7 diopters. पूछा क्या है? फाइंड करना है हमें कंबाइंड पावर. तो कंबाइंड पावर को हम यहां पर लिख लेते हैं P.
और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम P से डिनोट करें तो P हमें यहां पे फाइंड करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी नो दैट द कंबाइंड पावर इज गिवन एज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. तो इसी की तरह यहां पे अगर हम ये P1, P2 और P3 का वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें, सो विच इज 2 डायोप्टर्स फॉर P1 प्लस फॉर P2 it is 2.5 diopters and for P3 it is going to be 1.7 diopters. तीनों को ऐड कर लेते हैं. तीनों को ऐड करके हमें मिल जाता है 6.2 diopters. Last but not the least, we need to also end our numerical with a statement here. So what is the combined power? Therefore, the total power of the combination of this lenses is 6.2 diopters. As simple as that. I hope this numerical is clear to you. Take a screenshot or make a note of it if not already. Okay, moving ahead to the second problem. Doctor has prescribed a lens having power of 1.5 diopters and which is positive. Okay, what will be the focal length of the lens? What is the type of the lens? तो students, अगर हमने साइन कन्वेंशन अभी ध्यान से देखा तो यहां पर देखो पावर हमें दी हुई है प्लस 1.5 डायोप्टर, तो हमें वहां से ही अंदाजा लग जाता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस. लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फोकल लेंथ भी फाइंड करना. तो चलो एक एक करके करते हैं. What is the given thing? Given is the power. Power is 1.5 diopter. फाइंड करना है हमें फोकल लेंथ, स्मॉल f से उसको डिनोट कर लेते हैं. और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस. ओके, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी ऑर्डर में हम आंसर भी लिखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, ओके. सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. हमें पता है फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f. और फोकल लेंथ हम किस में फाइंड करेंगे, यहां पर मीटर्स में फाइंड करेंगे. ठीक है, तो f हो जाएगा 1/पावर. ओके, द फोकल लेंथ इज 1/पावर, दैट मींस 1/1.5. एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 10/15 एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग वी गेट 2:3. ओके, दैट मींस the focal length of the given lens is found to be 0.67 meters. Is that clear, guys? Okay, अब ये भी किसमें आया है, but obvious positive है. तो since the focal length is positive, the lens is a convex lens. What kind of lens is that? Convex lens. तो इसी से हमको अपना दूसरा आंसर भी मिल जाता है. एंड कर देंगे हम स्टेटमेंट से. The focal length of the lens is 0.67 meters and the given lens is a convex lens. Is that clear, my dear students? बहुत बढ़िया. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स पावर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है, पावर पूछा है. छोटा सा यहां पे एक ट्रिक है भाई, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में करना ना भूलना. यही गलती होती है स्टूडेंट से. तो गिवन डेटा इज यहां पे फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड करना है हमें पावर. पावर होगा डायोप्टर में, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं. पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स. 2/100, 20/100, दैट इज 2/10. ओके, दैट इज 1/5 or 0.2, however you want to put it. So 0.2 meters is your focal length. Okay, we substitute that this 0.2 here in place of focal length. So 0.2, that means 10/2, which is nothing but 5. So the answer is that the power here of the lens here is 5 diopters. So we end it with the statement the power of the lens is 5 diopters. I hope you are following these numericals. Okay, quickly going to the other question here. 5 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens. Converging lens मतलब convex lens की यहां पे हम बात कर रहे हैं. Of a focal length of 10 centimeter. Determine the position, size and the type of the image. Okay, अब देखो यहां पे छोटी सी एक चीज यहां पे देखते हैं. फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर. और ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर. हाई ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर. कहां पे रखा है? 25 सेंटीमीटर पे. मतलब 2f के बियॉन्ड रखा है, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है तो 2f कितना हो जाएगा? 20 उसके पीछे रखा हुआ है. तो अगर तुम्हें याद हो टेबल के कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से किस तरह की इमेज मिलती है और कहां पे मिलती है, तो हमें आधा आंसर तो मिल ही जाता है, पोजीशन. ठीक है, और साइज का मतलब यहां पर एक तरीके से ये भी पूछ रहा है कि भाई वो
ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, और साइज हम फाइंड भी कर लेंगे, और टाइप ऑफ द इमेज मतलब वो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं इसको। What is given to us is the height of the object h1 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Now the object distance is always negative according to sign convention, तो यहां पर हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, और जहां पर भी, ठीक है, ओके, सो u यहां पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जैसे हमने यहां पे बात की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा यहां पे -25 हो जाएगा। ओके, नाउ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे यहां पर एज इट इज। तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहां पे पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो मतलब पोजीशन हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस, साइज हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज विच इज h2, और टाइप ऑफ द इमेज में हमने लिखना है कि वेदर इट इज रियल इमेज और वेदर इट इज वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज हियर। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वी नो द लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से देखो u और f यहां पे दिया हुआ है, तो हमको v मिल जाएगा इजीली, तो यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स को 10 लिख देंगे, प्लस 1/u, u कितना है -25, राइट। So what will that become? Therefore 1/v is equal to 1/10 minus 1/25. इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 minus 10 upon 250, that is 15/250. Okay, and howsoever when you solve it, you get the answer as 3/50. That is meaning by invertendo, that is 1/v is 3/50. इसका मतलब v का वैल्यू कितना आ गया 50/3। 50/3 को फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 16.67 सेंटीमीटर विच इज अवे फ्रॉम द लेंस। ओके, किस तरह की इमेज बन रही होगी, प्लस में आया है आंसर, समझ में आ गया है कैसी इमेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। h2/h1 इज इक्वल टू v/u, राइट। तो h2 अपॉन 5 विच इज द वैल्यू ऑफ h1 इज इक्वल टू v। अभी हमने v फाइंड किया था 16.67 या 50/3, व्हाटसोएवर इज कन्वीनियंट एज पर द नंबरिंग, अपॉन u। u कितना है -25। ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये इजीली कट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। So h2 upon 5 is equal to -2/3. So h2 is equal to -10/3, right? -10/3. That means h2 का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आ गया -3.33 सेंटीमीटर। ये हमें पता ही था क्योंकि पॉजिटिव आया था, तो मतलब पॉजिटिव मतलब वो एक रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो साइज ऑफ द इमेज इज 3.3 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ओनली शोज हियर दैट इट इज अ इन्वर्टेड इमेज, ये याद रखना है। सो द टाइप ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव. Height is 3.33 centimeter, and the negative sign is also showing us the type of the image. Type of the image is real and inverted. Okay, and of course, if you see, the object is of 5 centimeters. So the image is going to be a diminished image because h2 जो है वो आया है 3.33, मतलब छोटा आया है, तो it is having a diminished image. Okay. Coming to the next question, and probably the last one also. An object kept 60 centimeter away from a lens gives a virtual image 20 centimeter in front of the lens. In front of the lens. Okay, front of the lens. That means यहां पे पता लग गया है कि हमें ये एक virtual analytic image है. What is the focal length of the lens, and is it a converging lens or a diverging lens? Okay, so an object kept 60 centimeter from the lens, मतलब u है 60 centimeter, u होगा negative हमेशा, gives a virtual image of 20 centimeter, so v जो है वो 20 centimeter है, और of course क्योंकि ये एक virtual image है, तो virtual image बनेगी लेफ्ट साइड पे, तो ये भी यहां पे हो जाएगा नेगेटिव। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। ये मैंने साइन कन्वेंशन के टाइम पे एक्स्ट्रा बता दिया था।
ओके, फाइंड क्या करना है हमें, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फाइंड करना है, मतलब स्मॉल एफ फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है कि भाई व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। ओके, सो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई माइनस 20 माइनस 1 बाई माइनस 60 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। साइन को प्लेस करते हैं तो ये हो जाता है माइनस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। Therefore, by cross multiplying, we get minus 60 plus 20 upon 60 into 20, which is equal to 1 by f. Minus 60 plus 20 is minus 40 upon 20 into 60 is 1 by f. We cancel this out. We get minus 2 here. Further, we can cancel this out. And if we further cancel this out, we get 1 by f is minus 2 by 60. That means f will be 30. Minus 30, right? So 1 by f is minus 1 by 30. So by invertendo, focal length is minus 30 centimeter. What is the focal length? Minus 30 centimeter. The focal length of the lens is 30 centimeters. And if it is 30 centimeters in minus, तो focal length तो 30 है, but क्योंकि negative आ गया आंसर, तो then it is a concave lens because it's a negative focal length. और नेगेटिव फोकल लेंथ होता है कॉन्केव लेंस का, तो इट इज अ कॉन्केव लेंस, दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। आई होप तुम्हें ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए हैं स्टूडेंट। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो तुम कमेंट कर सकते हो। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हाउसोएवर। With that, we will end our numerical by giving a statement. The focal length of the lens is 30 centimeter and the given lens is diverging lens. इसी के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें और बहुत सारी बातें करेंगे, कभी टॉपिक्स की, कभी थ्योरी की, कभी किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द थ्योरी की, और भी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बने रहना मेरे साथ। दिस इज अमन भाटिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस, सी यू ऑल सून।